Hola amigos, mi nombre es Bisal, soy profesor de español. Vamos a aprender pronombres en español. Hello guys, my name is Vishal and I am a Spanish teacher, and today we are going to learn about Spanish pronouns, right? Alright, without wasting time, let's get started. So as we know, in English we have pronouns, nominative pronouns and possessive pronouns and object when we are talking about personal pronouns, right, which stands for three person, first person, singular, second person and third person, right? So in Spanish it is same. Here we use yo for I, tu for you. It is a singular informal, right? When we are talking to younger ones or same age, right, with the same age, or you can say with friends. And here we have el, ella for he, she, right, and usted for you. We use usted for you. It is also singular, it's a singular formal, right? Here we used tu, it is a singular informal, but here we use usted, it is a singular formal. So you can understand the difference between them. When we are talking to our friends or the younger one, we use tu, we can use it. But when we are talking to our senior, so we can use usted, right, when we use with elder. And now we have nosotros, or you can say nosotras, right? See what happens in Spanish, everything is a female, a masculine or feminine, right? Because in Spanish they either count as a male, masculine, or as a feminine. So here we have nosotros, it is for male, right? We, when we talking about as a group of male, right, so we use nosotros. And when we use nosotras, so we use as a group of female, right? Same here, vosotros and vosotras. So it is a you, but it is used in Spain only, right? Now we have ustedes, it is plural. For example, I am saying you all guys are eating, right? So I will use ustedes están comiendo, right? So here again we have ellos, ellas. It is same as we learn about nosotras or nosotros, nosotras. Ellos stand for male and ellas stand for female, a group of female. When we are talking about like a group of girls, so I will indicate ellas, I will use ellas, but a group of male I will use ellos, right? So now we have learned about the subjunctive, or you can say nominative pronouns. We have learned about it. Now let's move on pronombres possessivos, right? Possessive pronouns, how we can use. See, here we have singular or plural, me as a my, and when we are talking about more thing, right, so miss, we will use miss. So again we have two singular, tus plural, it means your. Now let's move. Su, it is his or her, it stands for his or her. Again we have usted, so we will use su, your. Nuestros or nuestras, we will use for our. Vuestros or vuestras, right, it is used for your. Only in Spain. Remember one thing, when we use vosotros, so it is only used in Spanish, in Spain, right? Because there are a lot of place, or you can say there are a lot of countries where Spanish is spoken. For example, in Latin America, most of the people, they
speak in Spanish. They know very well how to use, but they don't use vosotras because it is all only used in Spain. Now let's move on. Sus, it stands for ustedes, your, right, for plural. Ellos, ellas, sus, their. So we already have completed this part also, right? Now we have completed this. First we have completed about the pronombres nominativos. Now we have learned about pronombres possessivos, right? Now let's move on. Objeto indirecto. Objeto indirecto, in English we use object, indirect object. For example, me, us, you, him, them. So here we use me for me, and te for you, and le for him or her, nos for us, os for you. I have see, it is written in short, right? It is abbreviated, but you can also use its full form as well, but most of the time people use it in short form. So here again, les, it is used for yes or you, and les for them. So now we have learned about Spanish pronombres, right? Pronouns. So let me once again repeat them in Hindi as well, because there are so many peoples in India, they even don't know English very well. So they will be able to understand it in Hindi as well, right? So now I am going to start it again in Hindi as well. So guys, प्रोनोम्ब्रेज नॉमिनेटिव, जब भी हम नॉमिनेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, स्पेनिश में भी वैसे ही नॉमिनेटिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे आई के लिए यो यूज होता है, यू के लिए तू यूज होता है, लेकिन ये यूज जो यूज किया जाता है ये सिंगुलर इनफॉर्मल, अपने से छोटों के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप यूज कर सकते हो, और जिनको आप ज्यादा जानते हो, मतलब जिनके साथ आपका फ्रैंकली बिहेव है. वैसे ही एल और एजा, एल मीन्स ही, एजा मीन्स शी. तो हम ही शीट के लिए और ही शी के लिए एल और एजा यूज करते हैं. वैसे ही उस्तेद, जैसे कि आप जानते हो अभी हमने यूज किया था तू, जो सिंगुलर इनफॉर्मल था, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने से छोटों के साथ या जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन, मतलब अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, जिनसे आप फ्रैंकली बिहेव करते हो, उनके साथ आप तू यूज कर सकते हो. अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेलिटी, मतलब जब आप फॉर्मल, मतलब किसी को औपचारिकता शो करना चाहते हो, अपने से बड़ों को इज्जत भाव के साथ आप बात करते हो, किसी एक को सिंगुलर, तो उस्तेद यूज करेंगे हम, जिसका मतलब भी क्या होता है यू. वैसे ही नोसोत्रोस और नोसोत्रास, नोसोत्रोस जो होता है वो हम प्लूरल मेल के लिए, जब हम ज्यादा होते हैं, जब हम बात करते हैं वी माने हम, जब हम की बात करते हैं तो हम नोसोत्रोस और नोसोत्रास का यूज करते हैं. नोसोत्रोस मेल के लिए, मतलब आदमियों का जो ग्रुप है या लड़कों का या बॉयज का जो ग्रुप है, उसके लिए हम नोसोत्रोस यूज करेंगे. लेकिन जब लड़कियों का ग्रुप की बात करेंगे, जब वो बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लड़का हूं तो मैं क्या बोलूंगा, नोसोत्रोस, राइट. हम अगर लड़कों का ग्रुप बैठे हुए हैं कहीं तो हम नोसोत्रोस यूज करेंगे, लेकिन लड़कियों का ग्रुप क्या यूज करेगा, जब वो वी बोलेगा कि हम, तो वो नोसोत्रास यूज करेंगे. वैसे ही वोसोत्रोस और वोसोत्रास, तो वोसोत्रोस मेल के लिए और आदमियों के लिए और बॉयज के लिए, और नोसोत्रास फीमेल के लिए. लेकिन ये सिर्फ यूज किया जाता है स्पेन में, ना ये लैटिन अमेरिका में यूज किया जाता है, ना ये मेहिको विच इज कॉल्ड मैक्सिको एज वेल, but in Spain, or you can say in Latin America or in America as well, it is called Mexico. उसके बाद हम बात करते हैं उस्तेदेस. उस्तेदेस, ये जब हम प्लूरल यू की बात करते हैं, जैसे हम बात करें आप सब, यू ऑल, तब हम उस्तेदेस का यूज करते हैं. ये प्लूरल फॉर्मल है, राइट. ये सिंगुलर है, ये एक वचन है, और ये बहुवचन है. वैसे ही एजोज और एजाज, एजोज जो हम यूज करते हैं वो
मेल फीमेल के लिए जब हम बात करते हैं दे, वे लोग, तब हम एजोज यूज करते हैं, या एयोज भी बोल सकते हो आप। वैसे ही एजाज, ये भी दे के लिए स्टैंड करता है, लेकिन ये फीमेल के लिए, एयाज और एजाज, राइट। अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, प्रोनोम्ब्रेस पोजेसिवो, राइट। जो पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, ऐसी जब हम इन चीजों के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, बिकॉज पोजेसिव प्रोनाउन स्टैंड्स विद अ नाउन, और यू कैन से इट रिलेट्स, इट शोज रिलेशन विद अ नाउन, राइट। पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है, वो किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी नाउन के साथ, मतलब किसी भी संज्ञा के साथ हमारा रिलेशन शो करता है, मतलब हमारा रिश्ता, राइट। सो यहां पे हम बात करते हैं मी मतलब माई, लेकिन जब ज्यादा चीजों की बातें करूंगा मैं, बहुत सारी चीजों की, अब मैं बात करता हूं मेरे पास एक कार है तो मैं मी यूज करूंगा, लेकिन जब मेरे पास 2 कार होंगी, फॉर एग्जाम्पल टेंगो, दोज कारो, कोचेज और कारोज, वो तो मैंने, चलो ये तो दूसरा हो गया भाई, ये यूज नहीं किया। सो मेरे पास 2 कार है। सो वैसे ही जब प्लूरल की बात करते हैं हम तो मिस का यूज करते हैं। वैसे ही तू, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, यू, योर, हम, तुम्हारा, या तुस, जब बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो तुस यूज किया जाता है। वैसे ही सू, हिज और हर, जब सिंगुलर है तो सू, उस्तेदत के साथ भी तुम्हारा। न्यूएस्त्रो, जब हम हमारे की बात करते हैं, न्यूएस्त्रो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, एएस, राइट। न्यूएस्त्रास, जब हम फीमेल की बात करते हैं, मतलब लड़कियों का ग्रुप जब बोलता है कि हमारा स्कूल या हमारी किताबें, तो वो न्यूएस्त्रास बोलेंगे, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, न्यूएस्त्रो, राइट। और ये भी प्लूरल और सिंगुलर ही होता है, इसमें भी ऐसे आप ऐड करके इसको और ज्यादा वो कर। वैसे वियस्त्रोस या वियस्त्रस, ये कहाँ यूज होता है, ये स्पेन में यूज होता है। रिमेंबर वोसोत्रोस, सो वोसोत्रोस जब स्पेन में यूज होता है तो वियस्त्रोस भी वहीं यूज होगा। ऐसा नहीं कि आप लैटिन अमेरिका में या मैक्सिको को वगैरह में यूज नहीं कर सकते वोसोत्रोस, बट वो ज्यादातर इस चीज को यूज ही नहीं करते, इसलिए ये स्पेन में ही ज्यादा यूज किया जाता है। स्पेन में इसको, या फिर उस्तेदस या उस्तेद, इसको ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे ही सूस, उस्तेदस, प्लूरल, जब हम, आप सब, जब मैं बात करूंगा आप सबकी कारें, आप सबकी किताबें, तो मैं सूस यूज करूंगा। वैसे ही एजोस, उनकी या उनके, ठीक है, उनके पैसे, उनकी किताबें, उनकी कारें, तो मैं सूस यूज करूंगा। तो यहां पर हम समझ गए प्रोनोम्ब्रे पोजेसिवोस, मतलब पोजेसिव प्रोनाउंस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टो इनडायरेक्टो। इनडायरेक्टो मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, वन इज द डायरेक्ट, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट। इंग्लिश में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट, हिंदी में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब एक तो एक्चुअल में कोई भी वस्तु हो गई, बुक, टेबल में, बोतल, ये सारी चीजें, पेन, मोबाइल, ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में कोई थिंग्स है, एक्चुअल में कोई वस्तु है, राइट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो हमसे डायरेक्ट बनी होती है, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउंस में जब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कोई भी एक्शन, मतलब किसी वर्ब के द्वारा इनडायरेक्टली हमारे पे वो एक्शन हो रहा होता है, राइट। सो हम यहाँ पे मे यूज करते हैं, राइट, मीन्स मी। जब हम बात करते हैं मुझे, मुझको, मुझसे, तो मी यूज करेंगे। तुम्हें, आपको, आपसे, इनफॉर्मल, तो ते यूज करेंगे। ले हम हिम और हर के लिए, मतलब उसका जब, और उसके के लिए, उसका, उसके, या उसको, उनको, उसको और उसका। नेक्स्ट वन इज ले यूज करते हैं हम यू के लिए, ये फॉर्मल के लिए यूज करते हैं और ये इनफॉर्मल के लिए। रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद नोसोत्रोस, सो नोस हम यूज करते हैं अस, राइट, मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद वोसोत्रोस, ओस, ये कहां यूज होता है, स्पेन में। उसके बाद उस्तेदिस,
ये प्लूरल फॉर्म है इनकी, इसलिए यहाँ पे लेस और लेस यूज किया जाएगा. सो गाइज, नाउ यू हैव लर्न अबाउट Spanish pronouns. So in the next video I will teach you how to use these pronouns, right? Till then, goodbye, hasta la vista, or you can say hasta luego. Before going to finishing this lecture, I think I should give you something in Spanish as well. For example, if you want to say someone, for example, अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि मेरा नाम विशाल है या मेरा नाम रोहित है, so you have two ways. Either you can say me llamo, for example, I am cold, me llamo Vishal or me llamo Rohit, or you can say my name mi nombre is Vishal, right? जब भी आप किसी से मिलते हो, for example, आप कहते हो nice to meet you, so you can use encantado और encantada. Encantada for female, जब भी कोई लड़की बोलेगी तो वो क्या बोलेगी? encantada, और आप क्या बोलोगे? encantado, right? और अनदर थिंग, जब भी आप किसी से कहना चाहते हो आई एम फाइन, सो यू कैन से estoy bien, और आई एम वेरी वेल, यू कैन से muy bien और estoy bien, right? So estoy bien, muy bien. If you are not feeling well, so you can also say muy, I am not very well, so muy mal, or you can say no estoy bien. You have two choice over here. Either you can say no muy bien, or you can say no, you can say muy mal. Mal means bad, something is not good, so you can say I am not well, estoy mal, right? So another one, I think I should tell you, if you want to say, for example, if you want to order some, if you want to tell someone, if you want to ask time to someone, so you can say que hora es. It means what is the time, okay? Que hora es. Hora means a hora, it is actually pronounced a hora, a hora. It means now, right now, okay? So guys, you have learned a lot of things. See you in next class. Till then, adios, or you can say goodbye. Adios means goodbye. So till then, enjoy these words, or you can use these words in your English, in your Spanish, or in the next class I will let you know how to use these pronouns. Till then, goodbye, have a nice day.